اے کاش کہ میں پہلے ہی بیوی سے پوچھ لیتی کہ میں یہیں ٹھہر جاؤں اور آپ کے فراق میں اشک بہاؤں یا مدینے کی طرف لوٹ جاؤں، اور جہاں کہیں بھی ممکن ہو آپ کے اس سفر کی حقیقت کو بیان کرتی رہوں، آپ کے پاس ہی ٹھہر جاؤں اور اپنی ماں سے جدائی کو برداشت کروں، یا پھر اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں اور آپ سے دوری کا غم سہوں، یہیں قم میں آپ کی قبر مبارک کی مجاور بن جاؤں اور آپ کے زائرین کی خدمت کروں، یا آپ کی سفیر بن کر مدینہ چلی جاؤں۔ اے کاش میں پہلے ہی بیوی سے پوچھ لیتی۔ بنو عباس کئی سال بنو امیہ سے جنگ و جدال کے بعد سن 132 ہجری میں حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے اس قیام کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد کو حق دلانے کے نعرے سے ہوا، لیکن اقتدار کے حصول کے بعد اولاد رسول پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا کر ان کو محدود کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ یہ سلسلہ فقط آئمہ معصومین کو درباروں میں پیش کیے جانے اور قید و بند کی اذیتوں تک ہی نہیں رکا، یہاں تک کہ حکومت بنو عباس کی طرف سے خاندان رسالت کو درس و تدریس تک کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی انتہا ان کی 5ویں حکومت کے زمانے میں دیکھنے کو آئی، جب امام حسین علیہ السلام کی حرم کی عمارت کو نقصان پہنچایا گیا اور پھر مزار کی علامت اور قبر مبارک پر سایہ کرنے والے قدیمی بیری کے درخت کو کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ ہارون الرشید کے بعد اس کا بیٹا مامون الرشید تخت و تاج کا وارث بنا۔ مامون دارالحکومت مرو میں ساکن تھا اور بغداد و مدینہ کے حوالے سے پریشان تھا۔ اپنے بھائی امین الرشید کو بغداد میں شکست دینے کے بعد کسی حد تک بغداد سے اس کی پریشانی کم ہو گئی، لیکن مدینہ کے لیے اس نے ایک نئی چال چلی۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو مدینے سے دارالحکومت کی طرف ہجرت اور ولی عہدی کے لیے مجبور کیا جانا مامون الرشید کی نیت کو آشکار کرتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی مرو کی جانب ہجرت کے تقریباً 1 سال بعد مدینہ کی مرکزیت کے خاتمے کے لیے اب کسی اور کو مدینہ سے ہجرت کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا۔ اے مسلمانوں، خیر و برکت کو خود سے دور نہ کرو۔ جو لوگ جوار رسول اللہ میں ہیں اور مکہ سے آنے والے حجاج کی میزبانی کر رہے ہیں، اپنے اس نیک عمل کو تکمیل تک پہنچائیں۔ اللہ کی نیکی قبول کرے۔ دعا کریں کہ حاکم مسلمین مامون الرشید کو اللہ کامیابی اور نصرت عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کے حاکم کے دل کو شاد کرے جس نے رسول اللہ کے دل کو شاد کیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ یقیناً راضی ہیں اور خوش ہیں کہ آپ کے چچا زاد بیٹوں نے تاج حکومت کو آپ کے فرزند کے سر پہ سجا دیا۔ رسول اللہ کے صالح چچا زاد بیٹوں کی حکومت کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کریں۔ اللہ صالحین کو حکومت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ احسان فراموشی کا کوئی علاج نہیں ہے اے شخص۔ مجھے نہیں معلوم کہ حکومت بنو عباس ایسا کیا کرے کہ تم اور تم جیسے لوگ حاکم کے خلاف زہر نہ اگلیں اور راضی ہو جائیں۔ تم نے دعا کرنے کا کہا اور میں نے دعا کی جو آتی تھی مجھے۔ بات کو طول دے کر جھگڑے کی شروعات نہ کرو تو بہتر ہے۔ کیسا جھگڑا ابن خوف؟ کہیں بغاوت کے دور کی طرح دوبارہ تلوار اٹھانے کا ارادہ تو نہیں تمہارا؟ کیا تمہیں مرو میں کسی نے نہیں بتایا کہ باطل گفتگو کے ذریعے حج کے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے؟ خطبہ تو تم نے سنا دیا، اب قبر رسول کی زیارت کرو اور تبرکات خریدو اپنے اہل و عیال کے لیے۔ میرے اور میرے جیسوں کے راضی ہونے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ در حقیقت مجھے اپنی نہیں بلکہ تمہاری فکر ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری آنکھیں میرے اس سبز رنگ کے لباس کو نہیں دیکھ رہی جو تم لوگوں کی ہی پہچان ہے، تو وہ سکے جن پر علی ابن موسیٰ کا نام کندہ ہے، جن سے تم کھانے پینے کا سامان خریدتے ہو اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے ہو، کیا وہ بھی دکھائی نہیں دیتے؟ سب دکھتا ہے۔ مجھے حکومت عباسی کے سکے بھی نظر آ رہے ہیں اور تمہاری آنکھوں میں نفرت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب اس سے زیادہ اور تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ حکومت میں حصہ بھی مل گیا، لیکن بات ایسے کر رہے ہو جیسے کوئی نقصان ہوا ہو تمہارا۔ کس حصے کی بات کر رہے ہو؟ ہمارا تو حق مارا گیا ہے۔ کاش کہ ان لوگوں نے صرف ہمارے لباس کا رنگ چرایا ہوتا۔ کیسی حکومت؟ تم تو ابھی مرو سے آئے ہو، بتاؤ
क्या अली इब्न मूसा ने वली अहदी को कबूल करने के लिए हुकूमत में अदम मुदाखलत को शर्त नहीं रखा? बताओ ताकि सब जान लें। देखो मुसलमान, ये जो तुम मेरे सामने यहाँ मदीना के बाजार में हुकूमत के खिलाफ अपनी तलवार जैसी जबान चला रहे हो, यानी अली इब्ने मूसा की हुकूमत हो जैसे, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, मरहूम हारून रशीद के जमाने में अगर कोई भी शख्स बोलने की जुर्रत करता था तो उस बागी को शहर से निकाल बाहर कर दिया जाता था। या अल्लाह, मरहूम हारून पर रहमत फरमा और एहसान फरामोशों पर अपनी लानत भेज। तुम्हारी ये जबान जो दुआ और लानत के लिए इतनी चलती है, तो फिर तुम रसूल अकरम की ये हदीस इन सब के सामने क्यों नहीं सुनाते? उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह बेरी का दरख्त काटने वाले पर लानत करे। जबान संभालो अपनी। जानते हो कि क्या कह रहे हो? इसने मरहूम हारून की तौहीन की है। अल्लाह की लानत हो इस पर। मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी। मदीना के हालात मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब थे। अली इब्ने मूसा की वली अहदी के जरिए लोगों के एतराज की आग को बुझाना मकसूद था, लेकिन हुकूमत अब्बासी से मुखालिफत की वो आग बुझी नहीं थी, बल्कि राख तले दबी हुई थी। मेरे लिए ऐसे मौके पर जब मैं हाकिम के सामने किसी को ले जाने पर मामूर हूँ, सबसे अहम मामला अमन और सलामती का है, और मैं सफर के पहले मरहले में ही समझ चुका हूं कि यहाँ अमन और सलामती का बहरान है। अमीर, ये तो फकत एक शख्स को ले जाने का हुक्म है। अली इब्ने मूसा के फर्जंद और जौजा को दारुल हुकूमत नहीं बुलाया गया। मेरा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। मुझे क्या मालूम कि पैगाम में क्या लिखा है। अगर ये इतना ही आम और फौरी था तो तुम इतनी देर से क्यों लेकर आए मेरे पास? मेरे जिम्मे एक और काम भी था। इसहाक इब्ने मूसा पर नजर रखनी थी मुझे। वो मक्का से यहाँ पहुंचा है ताकि सफर में साथ जा सके। इसहाक इब्ने मूसा, अमान दे मुझे, अमान दे मुझे इसहाक इब्ने मूसा। मैं मामूर हूँ, आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ हूँ। मदीना का रास्ता मुझे बहुत तवील लग रहा था, जैसे कभी खत्म ही ना होगा। मुझे हुकूमती कासिद की खबर पहुंचाने से पहले मदीना पहुंचना था और बीबी को मुत्तला करना था कि एक गैर मुतवक्के सफर दरपेश है। मुझे इसलिए भी जल्दी पहुंचना था कि वो जान लें कि इस सफर में हम खुद उनकी हमराही करेंगे, इससे पहले कि हुकूमती कासिद उन तक कोई बुरी खबर पहुंचा दे। आया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीबी कहाँ है? आपके भाई अली इब्ने मूसा के घर में है, वहां दर्स दे रही हैं। सब खैरियत तो है? कोई कासिद आया था दारुल हुकूमत से? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है। कोई बुरी खबर है क्या? तुम परेशान ना हो अबू अस्मा। भाइयों, अल्लाह खैर करे। कासिम भाई हमजा, इब्राहिम, देखो जनाबे इसाक आए हैं।
خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید ہم تو کب سے آپ کے منتظر تھے. ماشاء اللہ ابن موسیٰ تشریف لائے ہیں. جناب آپ کی داڑھی تو بالکل سفید ہو گئی ہے. آئیے منہ میٹھا کر لیجئے. خوش آمدید. یہ لیجئے جناب. شکریہ. دارالحکومت جاتے ہوئے میں پورے رستے اپنے بھائی علی ابن موسیٰ رضا کے ہمراہ تھا اور مامون کے محل میں ان کے ساتھ ہی داخل ہوا تھا. ظاہراً ہمارا استقبال بہت عالیشان ہوا، مگر در حقیقت اس کے پیچھے اس کی منافقت چھپی ہوئی تھی. مامون عباسی نے اس استقبال کا آغاز اپنے لباس کے رنگ کو تبدیل کرنے سے کیا. بنو عباس کی پہچان سیاہ رنگ کا لباس ہے، لیکن وہ سبز رنگ کا لباس پہن کے آیا جو کہ ہماری پہچان ہے. چچا زاد بھائی کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی. پھر اس کے حکم پر وہاں ایک تشت لایا گیا اور وہ تشت میرے بھائی علی ابن موسیٰ کے سامنے پیش کیا گیا. مامون کے اصرار سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ولی عہدی کی یہ پیشکش بھی مدینہ کو ترک کرنے کی مانند ہے، جس سے انکار کا اختیار نہیں. مختصر یہ کہ ولی عہدی کے سکوں کے اجرا سے پہلے ہی علی ابن موسیٰ نے یہ شرط رکھی کہ وہ ولی عہد کی حیثیت سے زیادہ ذمہ داریاں نہیں سنبھالیں گے، نہ کوئی عہدہ دیں گے، نہ ہی کسی کو معزول کریں گے اور نہ ہی حکومتی مراد لیں گے. چچا زاد بھائی، آپ اپنے بھائی کی طرح کفران نعمت نہ کیجیے. آپ جانتے ہیں وہ تو مال اور اقتدار کو خود سے دور رکھتے ہیں. آپ کو میں حاجیوں کے امیر کی ذمہ داری سونپتا ہوں تاکہ میرے اور میرے ولی عہد کے کاندھوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہو سکے. یہ سفر اسی حوالے سے ہے اور مجھے یہ امیر الحجاج کی ذمہ داری مامون عباسی اور ولی عہد کی طرف سے دی گئی ہے. بابا جان، بی بی کا درس اختتام پذیر ہو گیا ہے. بی بی کا درس اختتام پذیر ہو گیا ہے. سب بھائیوں اور ان کے بیٹوں کو خبر کر دیں کہ فوراً سفر کی تیاری شروع کریں. زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کی خاطر یہاں آیا ہوں. ہمیں مدینہ سے ہجرت کرنی ہے. حکومتی سپاہی کسی بھی وقت حکم نامہ لے کر پہنچ جائیں گے. قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. حکومت آپ کو مزید مدینے میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی. یہ ہمارے بھائی مولا رضا کا پیغام ہے آپ کے لیے. ہم سب بھائی سفر میں آپ کے ساتھ ہوں گے. حاجیوں کو پہلے ہی مکہ سے مرو کی جانب روانہ کر دیا ہے میں نے، تاکہ میں آپ کے ہمراہ سفر کروں. کیا کوئی ہے اس گھر میں؟ سربراہ کون ہے اس گھر کا؟ تمہارے بڑوں نے سکھایا نہیں کہ بغیر اجازت کسی کے گھر داخل نہیں ہوتے. اس حکومت کے حکم نامے کو کس کے حوالے کروں میں؟ اس حکم نامے پر فوری عمل درآمد بھی میری ذمہ داری ہے. اگر آج کا دن ڈھل نہ رہا ہوتا تو میں کل کا انتظار نہیں کرتا. ولی عہد کی ہمشیرہ کو کل دارالحکومت کا سفر اختیار کرنا ہے. کوئی سوال نہیں کرے گا. فوراً تیاری کرو جانے کی. آپ لوگ اندر جائیے. سلامت رہو. شکریہ. پانی پانی. ٹھہر جاؤ، پانی ابھی نہیں پلانا اسے. زخم سے کپڑا ہٹاؤ، دیکھوں ذرا. برداشت کرو میرے بھائی. ایک صاف کپڑا لا کر دو مجھے. اسما، اس سے اس کے زخم کو صاف کرو. وہ چراغ پکڑاؤ ذرا مجھے.
जख्म काफी गहरा है। बहुत हसास जगह पर लगा है, काफी वक्त लगेगा ठीक होने में। मैं अभी आती हूँ। मरहम बना लिया तुमने? एक बार देख लीजिए। ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसमें से कुछ और शामिल करो। बहुत ही मामूली से नमक का भी इजाफा करो इसमें और अच्छी तरह मिलाना। अब क्या करेंगे? तुम परेशान मत हो, बहुत ज्यादा खून बह चुका है उनका। जानती हूँ, लेकिन ठीक हो जाएगा। मैं कोई मदद कर सकती हूँ? दवा बनाते हुए कोई जिक्र वगैरह नहीं पड़ती क्या तुम? मैं अपनी वालिदा से तबाबत सीख रही हूँ, मुझे जादू टोना नहीं आता। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम मुतमईन तो हो ना कि जख्म के लिए यही मरहम बेहतर रहेगा? बेहतर तो ये है कि किसी को जख्म लगाने पर मजबूर न किया जाए। तो फिर तुम क्यों अपनी जुबान से वार कर रही हो? लोग कितने मुख्तलिफ होते हैं। बास हक के दिफा में ज़ख्म सहते हैं और अपनी जान निसार कर देते हैं, और बास न फ़कत ख़ुद को इससे दूर रखते हैं बल्कि ज़ख्मों पर नमक भी छिड़कते हैं। वालिदा जैसा आपने कहा था मैंने बना दिया। मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ आपका, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है ऐसी बातें सुनने की। क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम। पेड़ देना ना भूल जाऊं मैं कहीं। बहुत मुकव्वी होते हैं ये, ज्यादा इस्तेमाल मत करना। थोड़े से और। बेटी, ये तबाबत सीखने का कौन सा तरीका है? इनको उबाल कर इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले ये सीखो कि मरीज के साथ तुम्हें अच्छा सलूक करना है और सख्त लहजे में बात नहीं करनी। मैंने ऐसा क्या कह दिया बाबा जान जो आप नाराज हो रहे हैं? दरअसल मेरे कहने का मतलब ये था कि अब इन लड़ाई झगड़ों को खत्म हो जाना चाहिए। मामून अब्बासी ने हमारे मौला को वली अहदी का मनसब दे दिया है और बीबी को भी दारुल हुकूमत आने की दावत दी है। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि इस दुश्मनी के लिबास और उस पर लगे धब्बों को कराबतदारी और अपनायत के हौस में धो दिया जाए, ताकि हम भी सुकून का सांस लें और हमारे मर्दों के सरों पर से जंग और बदअमनी का साया दूर हो पाए। वरना इसी तरह आहो फरियाद और लड़ाई झगड़े की फिजा बनी रहेगी और तलवारें तेज होती रहेंगी। तुम्हारी जबान भी तलवार से कम तेज नहीं है। पकड़ो से। अब जबकि वो लोग सुलह चाहते हैं और अपनी तलवारों को न्याम में रख चुके हैं, और हम इस सुलह की शीरीनी को कड़वाहट में बदल देना चाहते हैं। हम मौला अली इब्ने मूसा को दारुल हुकूमत बुलाए जाने पर सुए ज़न करते रहे, तो बीबी को बुलाए जाने पर क्या कहेंगे? क्या ये खुशी की बात नहीं है? तुम्हें उन लोगों की नीयत के बारे में क्या मालूम? उन लोगों का जाहिर कुछ है और बातिन कुछ और है बेटी। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके लिए उन लोगों का बातिन बिल्कुल जाहिर है। ला हौला वला कुव्वता। क्या इस घर में कभी सब एक साथ खुश नहीं रह सकते वालिदा? इस घर में हमेशा से दुख और परेशानियां नहीं थी। कभी ये घर भी खुशियों का गहवारा हुआ करता था बेटी। हम नन्हे मेहमान को खुशामदीद कहने के लिए कतार बनाए खड़े थे। क्या ही अच्छे दिन थे। यहाँ से वालिदा ने पुरानी यादों को ताज़ा किया और अच्छे दिनों के बारे में बताने लगी। इस बात का बारहा जिक्र किया कि हम मूसा इब्ने जाफर के घर के अफराद की तरह रहे हैं। उस घर में हमें कभी कनीज़ी और गुलामी का एहसास नहीं हुआ। बीबी की विलादत का जिक्र भी किया और बताया कि उस घर में खुशी का समा था। हमारे मौला अली इब्ने मूसा के लबों पर मुस्कुराहट थी, और ये भी कि मूसा इब्ने जाफर ने उस घर के बड़े होने की हैसियत से नौ मौलूद के कानों में अजान दी। मेरी वालिदा ने सख्ती के दिनों गमज़दा यादों और मूसा इब्ने जाफर के हुकूमती बुलावे और कैदोबंद की अजियतों से सरफ़े नज़र किया, ताकि ये बता सकें कि मूसा इब्ने जाफर की अदम मौजूदगी में
अली इब्ने मूसा ने अपनी अजीज हमशीरा को कभी बाप से दूरी का एहसास नहीं होने दिया। बहन और भाई के रिश्ते में उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता ज्यादा उजागर था और ये आले मोहम्मद की शागिर्दा मदीना की खवातीन के लिए बेहतरीन मौल्लिमा साबित हुई। अच्छी यादों का तस्करा करते हुए बात मुझ तक आ पहुंची और बताया कि बीबी ने अपनी घर की खात्मा की बेटी यानी मुझे अपने भाई हमजा के साथ अज़दवाजी रिश्ते के लिए मुंतखब किया। मुझे बहुत खुशी है कि इस सफर में तुम बीबी के हमराह हो। मेरी बीबी का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफर के लिए तैयार हैं? ये वालिदा ने भेजा है, सफर में काम आएगा आपके। बहुत शुक्रिया। अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश आमदीद। तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र है अल्लाह का। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया बेटा। वालिदा ने कहा है कि अगर आप चाहें तो सफर पर चल सकती हैं हमारे साथ। नहीं बेटा, ये हकीकत है कि मुझे बहुत याद आएगी तुम दोनों की, मगर मेरे अंदर सफर करने की हिम्मत नहीं है। मैं यहाँ खातून और मोहम्मद इब्ने अली की खिदमत में रहूं अगर तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे लगता है। बीबी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, मेरी प्यारी बेटी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मदीना में दोबारा मिल बैठेंगे, पूरा यकीन है मुझे। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, लेकिन उस वक्त मैं एक नातजुर्बाकार शागिर्दा नहीं रहूंगी जिसकी तबाबत में आसानी से खामी ढूंढी जा सके, बल्कि ऐसी तबीबा होंगी जिसने दारुल हुकूमत के माहिर तबीबों से तबाबत सीखी होगी और मेरी अपनी एक पहचान होगी। इंशाल्लाह। मेरे जिगर का टुकड़ा अब तुम्हारे हवाले। आपके जिगर का टुकड़ा है और मेरी आंखों का नूर है। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। सफ़र एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब जो भी हो, लेकिन खुदा हाफिजी की नागवारी से शुरू होता है। और सफ़र से एक दिन पहले की शब खुदा हाफिजी में गुजरी। एक फूफी की खुदा हाफिजी अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अली से, एक मौल्लिमा की खुदा हाफिजी अपनी शागिर्द खवातीन से, और अपने जद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार से खुदा हाफिजी। बनु हाशिम में एक खूबी ये है कि जब तक वो जिंदा रहते हैं अपनी खवातीन को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ते। किस रास्ते से जाएंगे? सहरा के रास्ते से जाएंगे। सहरा के रास्ते से? बिल्कुल। वो तो खतरनाक रास्ता है। खतरनाक है लेकिन मुख्तसर है। सफर शुरू करें। रास्ता बहुत तूलानी है और दिन छोटे हैं। हमें फौरन रवाना होना है। तूलानी सफर उन ज़ख़ीम किताबों की मानंद है जिन्हें पूरा पढ़ना मुश्किल है। बस अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफर खुशगवार भी हो सकता है और दुश्वार भी। ये सफर इस्तिराब का सामना करेगा, आसानी या दुश्वारी को मुसाफिरों के सामने पेश करेगा और तरह तरह की फिक्रों को जन्म देगा, लेकिन नहीं मालूम कब क्या वाक़या पेश आएगा। मुख्तसर लेकिन नाशनास रास्ते सफर के मौमे को और पेचीदा करते हैं, लेकिन मुझे जल्दी पहुंचने का हुक्म मिला था। काफिले को यहाँ रोकना पड़ेगा। रेत का तूफान आ रहा है। रेत का तूफान आ रहा है।
सब अपनी जानों को आधा बना ले। ऊंट के दूध की लस्सी सहरा में गर्मी के एहसास को कम करती है। आप लोग क्या हज से वापस आ रहे हैं? सहरा का रास्ता क्यों इख्तियार किया? ये तो बहुत खतरनाक रास्ता है। ए बुजुर्गवार, आप तो इनके साथ थे। ये रास्ता खतरनाक है, क्या आपको मालूम नहीं था? क्या कह सकते हैं भाई, इस रास्ते के इंतखाब पे मजबूर थे। क्या कहा मजबूर थे? आप लोगों के साथ तो खवातीन और बच्चे भी हैं। ए बादिया नशीन, क्या तुम हमेशा लस्सी के जायके को अपने गैर मरबूत सवालों से इसी तरह बदजायका करते हो सकता है कि हमें देर हो रही हो। देर से पहुंचना बेहतर है, बजाय इसके कि इस बयाबान में अपनी जानों को खतरे में डाला जाए। रास्ते का तयन करना हमारा काम है, आपका नहीं जनाब इसाक। ये रास्ता थोड़ा तूलानी है लेकिन पुरअमन है, और उस रास्ते से बेहतर है जिसकी तजवीज हमें ये शख्स दे रहा है। तुलानी होने की वजह से क्या वो शख्स इस रास्ते से जाने पर राजी हो जाएगा? काफिला सालार हम हैं, इस सफर में वो हमारे साथ हैं। हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे जहाँ से हमारे भाई को ले जाया गया। हम गैर मदू मेहमानों का क्या करेंगे? लगता है इन मामूरों के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो हमारे काफिले के साथ साथ हैं। वो मामून अब्बासी के जासूस हैं। जब तक मर्व में सब कुछ ठीक है, हमें इनसे कोई खतरा नहीं। हमारी सफर के हवाले से परेशानियों को देखकर बीबी ने फरमाया कि हमें परेशान होने के बजाय सफर की इन जहमतों से इस्तिफादा करना चाहिए। उन्होंने फरमाया कि जिस रास्ते से भी गुजरें वहाँ बयान हदीस और वाज़ो नसीहत की मजालिस का इनेकाद किया जाए। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि दारुल हुकूमत से आए मामूरों की मौजूदगी में ये मजालिस कैसे मुनक्किद की जाए, और दूसरी तरफ बीबी के इत्मीनान की वजह से मुतमईन भी था। कई रोज़ो शब सफ़र में गुजरे। हम बयाबानों, सहराओं और सरसब्ज़ो शादाब इलाकों से गुजरते हुए जा रहे थे। हर रास्ते पर लोग हमें खुश आमदीद और खुदाहाफिज कहने के लिए मौजूद होते थे। आज हम सब इस मर्द मोमिन के मेहमान हैं। शब में यहीं कयाम करेंगे। अल्लाह कबूल करे। जितना मुमकिन हो इन मामूरों को मेहमान नवाजी में मसरूफ रखो। हमने आपको जहमत में डाल दिया। कैसी जहमत फर्जंदे इमाम, आपकी तशरीफ आवरी बाइस मुसर्रत है। आप लोगों की बरकत से अल्लाह ने आज कई साल बाद हमारे इस कबीले को बेटी की रहमत से नवाजा है, जो हमारे लिए खुशी का बाइस है। कितना अच्छा हुआ कि आप आई। आज कितना मुबारक दिन है। मैं जानती थी और सबसे कहती थी कि ख्वाब ख्याल इस कदर वाज़ेह और यकीनी नहीं होते। कितने सालों से मैं ये हसीन ख्वाब देख रही थी। काश के वालिदा जिंदा होती। एक वही थी जिनको यकीन था कि उनकी बेटी के मुक़द्दस बीबी की ज़ियारत की आरज़ू ज़रूर पूरी होगी। वो कहती थी, इसमें कोई फ़र्क नहीं कि तुम उन्हें जागते हुए देखो या ख्वाब में, चाहे बुढ़ापे में देखो या फिर जवानी में। मुक़द्दस बीबी का नाम चाहे मरियम हो या आसिया हो या फिर फातिमा, जब भी तुम उनकी ज़ियारत करो मेरा सलाम पहुंचा देना। मैं नहीं जानती थी कि आपका क्या नाम है, नहीं मालूम था कि आपकी ज़ियारत होगी या नहीं, मगर मुतमईन थी मैं, ये दिन ज़रूर आएगा। मुझे यकीन था इस बात का। आप पर मेरा सलाम, मेरी माँ का सलाम जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इस बच्ची का सलाम जिसकी विलादत आज ही हुई है। इसका नाम फातिमा रखा है, इसे कबूल फरमाए। वो बहुत खुश थी उसकी बेटी की पैदाइश के मौके पर वो मुक़द्दस बीबी के जिनकी ज़ियारत के लिए वो कब से बेचैन थी। आज वही उसके रूबरू खड़ी है और उसकी बेटी के कानों में अज़ान व अक़ामत कह रही है।
और बीबी भी उस बच्ची का नाम फातिमा रखने पर खुश थी। दुख्तर रसूल अल्लाह हजरत फातिमा से मोहब्बत बीबी की मुस्कुराहट से जाहिर थी। देखते ही देखते मजलिस बयान हदीस में तब्दील हो गई और फिर बीबी ने रसूल अल्लाह की चंद अहदीस का जिक्र फरमाया जिनमें औलाद अली से मोहब्बत और उसके अजीम अजर को बयान किया गया था। हम सब बहुत खुश थे सिवाय एक शख्स के। बिल्कुल तमीज नहीं है तुम्हें खाने की। मेरे आगे से सारा गोश्त चुनकर खाए जा रहे हो। खामोश हो जाओ, खाना भी सुकून से नहीं खा सकते तुम लोग। मैं सफर में गैर मामूली तब्दीली को महसूस कर रहा था। ये तय नहीं पाया था कि हम किसी नदी में गिरे पत्तों की तरह हैं कि पानी जिस तरफ भी चाहे बहा कर ले जाए। रास्ते में जगह जगह अली इब्ने मूसा के हामी ग्रोहों की शक्ल में जमा हो जाते थे और जो चाहते कहते और सुनते थे। इमाम मदीने में मौजूद नहीं है, ये मुख्तसर सा जुमला सुनते ही हमारे सफर की थकावट में कई गुना इजाफा हो गया था। जब तक घर का दरवाजा बंद नहीं हुआ, ना उम्मीद नहीं हुए, हम सवालनामे को उनके हवाले किया और ये तय पाया कि जब इमाम मदीना वापस आ जाएंगे तब हम इसका जवाब लेने के लिए दोबारा आए। दूसरी बार नाउमीदी तो अपनी जगह थी, लेकिन हमें एक बात ने हैरान करके रख दिया कि इमाम अभी वापस नहीं लौटे थे, मगर हमारे सवालों के जवाब हमें मिल चुके थे। हमें उनके वापस ना लौटने की फिक्र भी थी और ये जानने का इश्तियाक भी कि आखिर किसने इन सवालात के जवाब दिए हैं और क्या ये जवाब सही होने पर इत्मीनान किया जाना चाहिए भी या फिर नहीं। लेकिन ये इस्तिराब मदीना के मरकजी दरवाजे तक ही हमारे साथ रहा। जब हम पहुंचे तो इमाम को दूर से आते हुए देखा। अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलुल्लाह, हमारी जाने आप पर कुर्बान। हम मदीने से नाकाम नहीं लौटे थे। इमाम की जियारत की और मुख्तसर वक्त में जितना हो सका उनकी गुफ्तगू से फैजियाब हुए। हम खुश थे, लेकिन जब वो जवाब हमने इमाम की खिदमत में पेश किए तो हमारी खुशी में इजाफा हो गया। इमाम ने वो जवाब पढ़ना शुरू किए और हमारी मुस्तरिब नजरें इमाम की मुतमईन निगाहों पर जमी हुई थीं जब वो एक एक सत्र को पढ़ रहे थे। और फिर इमाम ने हमारे परेशान लेकिन मुस्कुराते चेहरों पर निगाह डाली और फरमाया, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाप बेटी पर कुर्बान जाए, बाप बेटी पर कुर्बान जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी बाप को अपनी बेटी पर ऐसे फख्र करते हुए नहीं देखा था। हमने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने ऐसी बेटियां अता की जो आलिमा हैं। बेटी, तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। अस्मा, इसकी आंखों का रंग कुछ सर्द नहीं लग रहा? जी मुझे भी लग रहा है। तुम्हारे पास कोई दवा है? नहीं। परेशानी की बात नहीं, मैं किसी से मंगवा लेती हूँ अभी। बहुत शुक्रिया आपका। ये तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? ये तो कमजोरी की अलामत है। मेरे ख्याल से दूध और शहद इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, उसके पीने से माँ में ताकत आएगी। मेरा सलाम हो रसूल अल्लाह के खानदान पर। औलाद ज़हरा का काफिला हमारे इस गांव के पास से गुजरे और हम मेजबानी से महरूम रहें, कैसे हो सकता है? अली इब्ने मूसा की हमशीरा के काफिले की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी है कि आप लोग मर्व जा रहे हैं। मूसा इब्ने जाफर की जिंदाने हारून में मजलूमाना शहादत हुई और उनके बेटे अली इब्ने मूसा आज महल में मैसूर हो गए। अगर इमाम हुक्म दे तो हुकूमत के तख्त की बुनियादें इन जवानों की मदद से हिलाकर रख देंगे।
तुम में से कोई एक यहाँ आ जाए। जंग की मशक करने में कैसा डर। बस इतना ही लड़ सकते हो? ये काफिला तो तुम लोगों की हिफाजत में जा रहा है। कोई मामूली चरवाहा भी तुम लोगों को आसानी से लूट सकता है। देखा आपने इब्ने मूसा, हमारा हर जवान 10 जंगजुओं से अकेला लड़ सकता है। अल्लाह इनकी शुजाअत और महारत में और इजाफा फरमाए। इन जवानों की तलवारें अल्लाह के दुश्मनों के खून की प्यासी हैं। ये सब्र मसलहत का दौर कब खत्म होगा जनाब इसहाक? आखिर मैदान जंग में कब उतरेंगे? हम तो इस वक्त भी मैदान जंग में ही मौजूद हैं जवान। तलवारें नियाम में रखकर इताअत करके अपने इमाम की। मसलहत सुलह और मकाम के हुसूल में जंग कहाँ है, वजाहत कीजिए जनाब। खामोश, तुम्हें मेहमानों की इज्जत और औलादे अली की हुर्मत का ख्याल नहीं है? वो औलादे अली जिन्होंने जुल्फिकार को नियाम में छुपा रखा है, क्या उन्हें अपनी हुर्मत का ख्याल है? लगता है कि तुम जंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं जवान। तलवार चलाना, नेजा उठाना और तीर को कमान से फेंकना तुम जैसे जंगजू के लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन बेहतर है कि पहले अपने नफ्स अम्मारा से जंग करें। मैं आपकी बातें बिल्कुल नहीं समझ पा रहा जनाब। काश इन लोगों को ये समझाया जा सकता कि जंग फकत जिदाल और क़िताल नहीं, तलवारों की गूंज ने इनको बहरा कर दिया है और तलवारों की चमक ने इनकी आंखों का नूर छीन लिया है। अब इन्हें जंग का कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं देता, वो रास्ता जो इनकी जिंदगियों की जमानत बना। अस्सलामु अलैकुम। जब से मुझे ये खबर मिली है कि आप तशरीफ ला रही हैं, मैं बहुत बेचैनी से मुंतज़िर थी आपकी। कई बार सोचा आपके लिए क्या बनाऊं मैं। बाग से ताज़ा फल तोड़कर लाई हूँ, कबूल कीजिए इन्हें। कई मर्तबा अपने गरीब खाने को साफ किया ताकि आपके शाया निशान बना सकूं इसे। अब इस नाचीज मेजबान की एक छोटी सी ख्वाहिश है। सफर में आपने कई घरों को अपने बयान हदीस से मुनव्वर फरमाया है। कबीले की तमाम खवातीन आपकी मुंतजिर हैं। चाहती हूँ कि मेरे गरीब खाने को भी ये शर्फ बख्शें। अब ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर ये सब एक या दो बार होता तो और बात थी, लेकिन हर बार मजलिस बयान हदीस में विलायत अली के मौजू को ही बयान करना, इसका कोई ख़ास मकसद हो सकता है। वो हमारे मंसूबे को नाकाम बना रही थी। वो जिनके दर्स व मजालिस को महदूद करने के लिए उन्हें मदीना से मर्व बुलाया गया था, अब वो उस काफिले में जो कि हुकूमती हिफाजत में ले जाया जा रहा है, रास्ते में आने वाली आबादियों में भी अपना दर्स व बयान जारी रखे हुए हैं। खजूरें लाया हूं आपके लिए, मुंह मीठा कर लें। ए बहादुर, कैसे हो तुम? ये लो ताजा रोटियां, बीबी ने भिजवाई हैं। मेरे लिए? हाँ, उन्होंने तुम्हारे लिए भिजवाई हैं। आप सलामत रहे बाबा। आ गई तुम बेटी। बगदाद नजदीक है। बीबी को जाकर बता दो कि उनके वालिद का मजार ज्यादा दूर नहीं है। हिजाज में सूरज की तपिश बहुत ज्यादा होती है, गोया आग बरस रही हो। लेकिन इराक के बयाबानों में बारिश और बादलों से गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। इराक में हमारा आबाई घर रहने के लिए बेहतरीन जगह थी।
मैं जानती थी ज़ियारत का इश्तियाक बीबी के सफ़र की थकावट के एहसास को कम कर देगा। बीबी, हम बगदाद के नजदीक पहुंच गए हैं। वालिद गिरामी के मजार की जियारत के लिए जाएंगे पहले। من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو. پای من از ره خسته شد، آل و پرم بشکسته شد، هر در به رویم بسته شد، جز درگه احسان تو. سوی تو روی آوردم، ای خون صبوح آوردم، من آبرو آوردم، کو لطف بی پایان تو. आहिस्ता आहिस्ता मेरी परेशानी में इजाफा हो रहा था। भाई अली इब्ने मूसा का फिराक, भतीजे मोहम्मद इब्ने अली से खुदा हाफिजी, वालिद मूसा इब्ने जाफ़र के मज़ार पर हाज़री, वो सफ़र जिसमें एक के बाद दूसरा गम नसीब हो रहा था और हमारा काफ़िला उन नसीहतों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा था। अस्मा, जरा बीबी को देखिए। बीबी, बीबी, आप लोग हट जाए यहाँ से। बाबा, बाबा फौरन पानी ला कर दीजिए। विलायत है मानंदे कश्ती नूह, है अहले विलायत ही अहले निजात। वो दिल जो विलायत के हामी नहीं, वही दिल है गुमराह और बेसबात। और जरा ये मिसरे समात कीजिएगा कि कैसे रसूल खुदा की वसीयत को भुला दिया गया। रसूल खुदा की वसीयत को भी भुला डाला जैसे हो एक आम बात। तवज्जो चाहूंगा, ये रस्म बशर है के बाद वफात वसी ही चलाता है सब मामलात। कुछ लोग अहले बैत से दुश्मनी को दिल में छुपाए रखते हैं। जो दिल में छुपाए रहे दुश्मनी, अगरचे ये लगती है कुछ सख्त बात, वो सब हक पे होते अगर मुत्तफिक, तो उम्मत बिखरती न यूं शश जिहाद। तुम फौरन वहां जाओ और जाकर देखो कि वो खवातीन में क्या बातें कर रही हैं, कौन सी हदीस बयान कर रही हैं, किस सवाल का जवाब दे रही हैं और हुकूमत के खिलाफ क्या बातें कर रही हैं। जो कुछ वहां सुनना लफ्ज ब लफ्ज मुझे आकर बताना, बगैर किसी कमी बेशी के, बहुत एहतियात से। चलो जाओ अब। मैं बहुत खुश हूं कि अपनी जिंदगी में इस वहदत का और आले रसूल की वली अहदी का ये मुबारक दिन देखना नसीब हुआ है मुझे। अब खून खराबे और इख्तलाफात का दौर खत्म हुआ, कैद व बंद का खौफ व हिरास नहीं रहा। अब्बास हो या फिर अली, चाहे चचा हो या चचाजाद भाई, दोनों ही रसूल अल्लाह के खूनी रिश्ते हैं। तमाम इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं। बीबी पर उस खातून की साजिश आमेज गुफ्तगू नागवार गुजरी। उन्होंने अपने जद रसूल अल्लाह से हदीस नकल फरमाई और कहा कि
उस औरत की तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को दूसरों के बराबर करार ना दिया जाए। और हज़रत फातिमा ज़हरा की एक हदीस का जिक्र किया जो नस्ल दर नस्ल औलाद अली से रिवायत हुई थी। क्या तुमने उसे फरामोश कर दिया है जो रसूल अल्लाह ने गदीर खुम में फरमाया था, जिसका मैं मौला हूँ ये अली भी उसका मौला है। और ये भी फरमाया कि अली को मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। तुमने हमारे दिलों को तस्कीन बख्शी, अल्लाह तुम्हारे वालिद के दर्जात बुलंद करे। वालिद कहा आपने, उस पर अल्लाह अजाब नाज़िल करे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अपने बाप को बद्दुआ क्यों दे रहे हो ऐ शायर? क्योंकि उसके करतूत से वाकिफ हूं मैं शाहिद हूं कि वो जालिम शख्स फर्जंद रसूल को जिनके मज़ार की आप जियारत करने के लिए आए हैं दर्दनाक अजियतें देता रहा। आखिरकार फर्जंद रसूल शहीद हो गए। उस वक्त मैं बहुत कम सिन था। मैंने खुदा की बेहतरीन और बदतरीन मखलूक को एक साथ देखा है। थोड़ा ख्याल करो है भाई, हो सकता है कि तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसे अफराद मौजूद हो जो तुम्हारी बातें हजम ना कर सके। अल्लाह आपकी ज़ियारत कबूल करे। आप चाहें तो मजीद रुक सकते हैं यहाँ। बगदाद में मुझे अपने एक देरीना दोस्त से मुलाकात करने के लिए जाना है। इस तरह आप लोगों को यहाँ रुकने के लिए ज्यादा वक्त मिल सकेगा। तुम्हारा क्या नाम है ऐ शायर गुमनाम? कशा जिम। मुनाफिकाना शायरी में काफी महारत हासिल है तुम्हें। तुम्हारा नाम याद रहेगा मुझे। उनके बारे में काफी सुन रखा था। एक जगह जमा ना हो। ये भी सुना था कि उन्होंने कैद खाने में बहुत से दारोगों को हक की तरफ रागिब किया। और ये भी सुना कि वो हारून और रशीद की हुकूमत के खिलाफ क़याम करने का इरादा रखते थे। और ये भी कि वो रसूलुल्लाह के फर्जंद हैं। मैंने अपने नाना बिन शाहक के कैद खाने में जो देखा, उसे अगर मैं एक लफ्ज में बयान करना चाहूं तो वो लफ्ज होगा इबादत। लगता था कि उनका माबूद कोई और है और हमारा कोई और। हमारी सोच से बढ़कर वो अल्लाह की इबादत किया करते थे। वो तवील सजदे करते थे और अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद करते थे। उनको देखकर मुझे अल्लाह से एक खास लगाव हो गया। लेकिन मेरा बाप बहुत संग दिल था। उसका दिल पत्थर से ज्यादा सख्त था। वो मूसा इब्न जाफर के गुज़िश्ता दारोगों से बहुत मुख्तलिफ था। पहले वालों की तरह वो इस जुर्म के इर्तिकाब से मुनसरिफ नहीं हुआ और उसका दिल और हाथ हाकिम की तरफ से रसूलुल्लाह के फर्जंद की जिंदगी के चिराग को गुल करने के फरमान के इजरा पर बिल्कुल भी नहीं लर्जे। मुझे उनकी शहादत की खबर के मदीना पहुंचने का बहुत अफसोस था, इसलिए कि मदीना को बगदाद से कभी कोई अच्छी खबर नहीं मिली थी। मुझे खबर मिली है कि अली इब्ने मूसा के हामी अब्बासी हुकूमत के खिलाफ कयाम करने के लिए आमादा हो रहे हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है। सब कुछ हुकूमत के ज़ेरे नज़र है और हर किस्म की खबरें और सफ़र की तफसीलात मुसलसल दारुल हुकूमत पहुंचाई जा रही हैं। आप लोग बाहर चले जाएं।
کیا تم جانتے ہو کہ جس قافلے کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے وہ جن علاقوں سے بھی گزرتا ہوا آ رہا ہے وہاں کے لوگ قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا مامون عباسی کو اس بات کی خبر ہے کہ تم ولی عہد کی ہمشیرہ کو کس راستے سے لے کر جا رہے ہو؟ وہ بے خبر نہیں۔ آج تم نے دیکھا بغداد میں قریش کے قبرستان میں اس یہودی زادے کشا جم نے کیا کیا؟ کیا یہ بھی بتایا ہے تم نے مامون کو یہ خطرناک راستہ جو محبان اولاد علی سے بھرا ہوا ہے کس کا انتخاب ہے؟ اس خبر کو بھی جتنا جلدی ہو سکے تفصیلی طور پر دارالحکومت تک پہنچاؤ، خبردار کر رہا ہوں میں۔ یہ پیغام ہمارے مولا علی ابن موسیٰ تک پہنچا دیجیے۔ لکھنے والوں کے نام اس میں تحریر نہیں کیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو ان افراد کی جانیں محفوظ رہیں۔ مامون عباسی نے اپنا حقیقی چہرہ عیاں کر دیا ہے، کوئی بھی قافلہ دارالحکومت نہیں پہنچ رہا۔ بہت سے مومنین جو علی ابن موسیٰ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے تھے وہ دارالحکومت مرو نہیں پہنچ پائے۔ حکومت کے شدید رد عمل کے نتیجے میں بہت سے ہاشمیوں نے جام شہادت نوش کیا اور باقیوں کی کوئی خیر خبر نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک اور حکومتی پیغام آیا ہے۔ یہ سفر اب موسیٰ ابن جعفر کے فرزندان سے کیا چاہتا ہے حمزہ؟ آخر کیوں اس خاندان کے نصیب میں اپنے وطن سے دوری لکھی ہے؟ والد غریب الوطن ہو کر بغداد میں شہید ہو گئے، ان کے فرزند کو مرو میں رہنے پر مجبور کیا گیا۔ اور پھر حکومتی پیغاموں کا یہ سلسلہ۔ اس بار کیا نیا ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ آدھی رات گزر چکی ہے، سردی بھی مزید بڑھ گئی ہے۔ مجھے تو ان کی خواتین اور بچوں کی فکر ہے، ان کا مزید یہاں ٹھہرنا بہتر نہیں ہے۔ میں جا کر کہتی ہوں۔ بی بی جان، جانتی ہوں کہ اپنے والد کی قبر سے جدا ہونا آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن سردی کی وجہ سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے ہم یہاں۔ بی بی، بہتر ہوگا آپ کچھ دیر آرام کر لیں۔ اس بد اخلاق بوڑھے کے تماچے سے میرا اندازہ اور بھی صحیح ہو گیا کہ بغداد اور مرو کے درمیان فاصلے اتنی آسانی سے کم نہیں ہو سکتے۔ سینکڑوں سیاہ لباس پہنے عباسی جو خود حاکم وقت مامون کے خاندان سے ہیں ابھی تک اس کی تدبیر اور عقل مندی پر ایمان نہیں لائے، اور اس کا ہر جانا مجھ جیسوں کو بھرنا پڑتا ہے۔ شاید ایک ہی بات ایسی ہے جس پر ان دونوں کا اتفاق ہے، اور وہ ہے اولاد علی سے دشمنی۔
हम हाकिम वक्त के वली अहद के सगे बहन भाई थे, लेकिन इसके बावजूद हमारी परेशानियां और मुश्किलात कम नहीं थीं। और इस परेशानी की एक वजह यह थी कि हमारे किसी भी काफिले को मर्व पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। बीबी भी इस हवाले से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि हम ये बात जान चुके थे कि मामून अब्बासी की हुकूमत के दौरान हर इक़दाम गैर मामूली है। उम्मीद है कि आपका सफर अच्छा गुजर रहा होगा। कैसा गुजर रहा है मोहतरम इसहाक? आपके लिए शेर पढ़े जाते हैं, कुर्बानी की जाती है आपके लिए, इस्तकबाल और खुदा हाफिजी हो रही है, और फिर भी इतने दुख भरे अंदाज से दश्त व बयाबान को तक रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए इस सफर में। कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर उस सफर पे हम खुश कैसे हो सकते हैं जिस सफर के लिए हमें मजबूर किया गया है? मकाम और इक़्तिदार के लिए मजबूर किया जाना काश हमें भी नसीब हो जाए। लगता है कि आप इरादा कर चुके हैं कि हकीकत से मुंह फेर लिया जाए। अल्लाह आपको हकाइक देखना नसीब करे। अल्लाह को बीच में क्यों लाते हैं? उससे शिकायत है मुझे। क्या मेरा हक यही था कि मैं इस तरह काफिले के हमरा हूं और हर रोज आपकी नफरत भरी निगाहों का सामना करूं, और दूसरी तरफ मेरे अपने लोगों की मेरे साथ बदसलूकी? क्या क्या कुछ सहना पड़ रहा है मुझे। खैर छोड़िए, आपसे दिल की बातें करने का कोई फायदा नजर नहीं आता मुझे। ठीक है, जाइए, मगर ये बात जहन में रहे कि जो अल्लाह करता है वो बेहतर होता है हमारे लिए। कैसी नफरत! आपकी रोटी में खजूरें डालकर आपके सामने पेश किया जाता रहा, उसमें नफरत थी या हमराही सफर की मिठास थी? अल्लाह ने आपको मुस्तहिक समझा है, तभी दोनों रास्तों को आपके सामने वाज़ेह कर दिया है। ये तौफीक हर किसी को नसीब नहीं होती। आपको इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है। पहाड़ों और वादियों की शदीद सर्दी के जिससे हमारा पहली बार वास्ता पड़ा था, हमारे लिए वबाले जान बन गई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात ये थी कि हुकूमत के भेजे हुए मामूर अचानक गायब हो गए और मशकूक अफराद की आमदोरफ्त शुरू हो गई। ये अजीब और गरीब इज़्तिराब और वहशत की कैफियत हड्डियों तक पहुंचने वाली सर्दी से ज्यादा तकलीफ दी थी। क्यों, क्या हुआ? मुस्तकबिल की तबीबा का ज़ौक़ शौक क्यों मान पड़ गया? आगाज़े सफर वाली खुशी कहाँ गई बेटी? ये सफर अजीब है बाबा।
हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं मेरा इश्तियाक उतना ही कम होता जा रहा है। किस बात की परेशानी है तुम्हें? मैं साथ हूँ, तुम्हारा शौहर साथ है, और साथ में अरबी घोड़ों पर सवार बनु हाशिम के शमशीर जन हैं जिनका कोई मुकाबिल नहीं। घबराने की कोई बात नहीं बेटी। मेरा दिल परेशान है। ये सफ़र बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैंने तसव्वुर किया था। पहले मुझे ये लगता था कि आप मामून अब्बासी को बिला वजह ही चालाक हुक्मरान और उस हुकूमती दावतनामे को एक साजिश समझ रहे हैं। मैं समझती थी कि आप इस सफ़र की अहमियत से ठीक तरह वाकिफ़ नहीं हैं। आप जानते हैं ना कि मुझे मर्व के कुतुब खानों और तिब्बो तबाबत के मराकज़ जाने का कितना शौक़ था, और दारुल हुकूमत में उस इमारत को भी देखने का शौक़ था जिसे हमारी सुकूनत के लिए मखसूस किया गया है। और यहाँ क्या है? रेत, पत्थर और आलूदा हवा के अलावा और तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो रेत और पत्थरों ने तुम्हें मायूस कर दिया। परेशान मत हो, पहुंच जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही। देखें, यहाँ कोई भी खुश नहीं है। लगता है जैसे खुशियाँ हमारे लिए हैं ही नहीं। बीबी भी इस सफ़र से परेशान है। ये हुकूमती मामूर अचानक गायब हो जाते हैं और कोई भी कहीं से भी जाहिर हो जाता है। हमजा और इसहाक जान हथेली पर रखकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। ये वो सफ़र बिल्कुल नहीं है जो मैं समझ रही थी बाबा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। ये कैसी दावत है जिसके लिए हमें इतनी सहमतें और अज़ियतें उठानी पड़ रही हैं। अब अकल आई है तुम्हें? जब ये हकीकत तुम्हारे सामने वाज़े हो ही गई है तो अब पहले से ज्यादा बीबी का ध्यान रखना। बीबी की हिफाजत अहम है। मैं नहीं चाहता कि पूरी जिंदगी की खिदमत गुजारी के बाद अपने मौला रजा की अमानतदारी में किसी कोताही पर शर्मिंदगी उठाऊं। बाबा जान, अल्लाह आपको सलामत रखे बाबा जान। बीबी कह रही हैं कि हम यहाँ क़याम करेंगे। वो चाहती हैं कि यहाँ की ख़वातीन के लिए मजलिस हदीस व नसीहत का इंतज़ाम किया जाए। उनका हुक्म सर आंखों पर। मैं बहुत परेशान हूँ। किसी की हिफाजत आसान काम नहीं, वो भी किसी ऐसी हस्ती की हिफाजत जो इस कदर अहम और महबूब हो। तो फिर इस इज़्तिराब और बेचैनी का होना फितरी अमल है। हमारा ये सफ़र तो अजीबो गरीब वाक़यात से भरा हुआ है। सफ़र का तूलानी होना, दूरी और उदासी, कभी अपनों और कभी गैरों के साथ माशरत, ये सब जंगजू मर्दों के जिस्म रूह को भी थका देता है। मैं परेशान हूँ। मैं बीबी को ऐसी रंजीदा हालत में देखकर गमज़दा हूँ। एक अरसे से ज़मीन व आसमान मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सफ़र दुखों और तकलीफ़ों से भरा हुआ है। कल की रात आपने कहां बसर की जनाब? आपकी खातिर खुद को मैंने काफले से दूर रखना चाहा। ये जो नामालूम लोग हमारे काफले के साथ साथ हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं? नामालूम कौन है? मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। अच्छा, खुश आमदीद। कुछ दिनों से मैं बहुत बेसब्री से आप लोगों की मुंतज़िर हूँ। मेरी दावत कबूल करके मेरे गरीब खाने को इज्जत बख्शे। हलवा बना कर लाई हूँ मैं। अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं ये बीबी की खिदमत में पेश कर दूँ। मुंह मीठा कर लें जनाब इसहाक, बहुत खुलूस से बना कर लाई है। अल्लाह आपका खुलूस कबूल करे। हमजा। जी भाई। इन खातून को बीबी के पास ले जाएं। ठीक है। आपके आने की खुशी में मैं ये हलवा बना कर लाई हूँ। आप कबूल कर लेंगी तो इज्जत अफजाई होगी मेरी। थोड़ा सा चख लीजिए।
क्या तुम जानते हो कि क्या कर रहे हो नादान? अस्मा, अस्मा, अस्मा। क्या बात है हमजा? सब खैरियत तो है? मैं नहीं जानता, लेकिन बेहतर है कि कोई उस हलवे को ना खाए। क्या हुआ हमजा? उस बूढ़ी औरत के बेटे को मामूर से सिक्के लेते देखा मैंने। मैं भी नहीं जानता कि क्या हुआ है। मुझे शक हुआ तो इन्हें आकर मना किया। तुम्हें नहीं लगता कि इंसान को अपनी की गई गलतियों से सीखना चाहिए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं अब तुम्हारा मातहत नहीं हूं। मामून अब्बासी की मकाराना चालों से मुझ जैसा तजर्बाकार और वफादार सिपाही भी महफूज नहीं था। मैंने उस शख्स के साथ अहद वफा बांधा था जो दूसरों को क्या अपनों को भी माफ नहीं करता। एक मामूरियत के बाद दूसरी, और इसके बारे में मैं बस इतना जानता हूं कि यह अब्बासी हुकूमत के लिए मेरी जिंदगी की आखिरी मामूरियत होगी। अगर कोई चाहता कि हमें किसी मुश्किल में डाले और उस पर इल्ज़ाम भी ना आए तो वो क्या करता? वही जो मामून अब्बासी हमारे साथ कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के सिपाहियों में इतनी जुर्रत है कि वो वलीअहद के खानदान के काफिले पर हमला कर सकें, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मामून अब्बासी की साजिशें बेनकाब हो जाएंगी, और उसने जो दोस्ती का ढोल पीटा है वो तबले जंग की सदा में तब्दील हो जाएगा। जैद, आप काफिले के पीछे कुछ फासले पर साथ आएं। कासिम, आप पहाड़ों और बुलंदियों पर नजर रखेंगे। हमजा, आप जाफर के साथ हमारे काफिले के आगे चलेंगे। अगर कोई मशकूक हरकत नजर आए तो फौरन खबर करेंगे। मदीना से यहाँ तक नामालूम और मख्फी अफराद हमारे काफिले का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। कभी पहाड़ों में, कभी नखलिस्तानों में, कभी मैदानों और बयाबानों में। लेकिन मुझे इससे बढ़कर हुकूमत की तरफ से इस साजिश का डर था कि कहीं वो किसी हादसे का सहारा ना ले, जैसे किसी पहाड़ से बड़े पत्थर का गिरना, खैमों में आग का लग जाना, या फर्जी राहजनों के जरिए हम पर हमला करवाना वगैरह, जिसके बाद हुकूमत खुद को इस सारे मामले से मुबर्रा करार दे। ये जगह खतरे से खाली नहीं है। जितना जल्दी हो सके यहां से निकलना होगा। बीबी बीमार हो गई है और मेरी किसी भी कोशिश से खातिर खा नतीजा हासिल नहीं हो रहा। शायद ये इसहाक इब्ने मूसा के तज़क्कुर की वजह से है। उन्होंने जब से कहा है कि वो खतरे को महसूस कर रहे हैं और हमें बीबी का पहले से ज़्यादा ख्याल रखना होगा, तब से हर सदा पे मेरा दिल लरज़ उठता है। हमजा लौट आया है।
दुनिया मेरी सोच और तवक्को से कहीं झूठी थी। पहले मैं सोचता था कि ज़मीन और आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन मैं अब्बासियों के अलावा किसी और के लिए तलवार नहीं चला सकता। मगर यहाँ हमराही सफ़र की खजूरों की मिठास अपना काम कर गई और मैंने अब अपने ही साबका साथियों के हाथों ज़ख्मी बदन के साथ अपने हम काफिला की जानों की हिफाजत की खातिर तलवार उठाई है। ये आपके साथ क्या हुआ है? मुझे माफ कीजिएगा जनाब इसाक, हक को पहचानने में देर हो गई, बहुत देर। आपकी और आपके लोगों की जानें महफूज नहीं है। वो किसी भी सूरत इस काफिले को सही सलामत मर्द नहीं पहुंचने देंगे। मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। कासिम, जैद, इब्राहिम, आप लोग मेरे साथ चलें। हमजा, आप बीवी और दीगर खवातीन को लेकर किसी पुरअमन इलाके की तरफ चले जाएं। याकूब, हमजा के साथ जाएं। आप जल्दी करें। हमारा क्या होगा? बेहतर होगा कि आप काफिले से कुछ फासले पर रहें। आपकी हिफाजत के लिए हमजा साथ जाएगा आपके। हमारे भाई और इमाम रिजा आपके मुंतजिर हैं, उन्हें हमारा सलाम कहिएगा। मैं आक़िबत खैर का मुंतजिर था। मुझे जर्रा बराबर भी मौत का खौफ नहीं था। हम बनु हाशिम को दुनिया में शहादत से बढ़कर कुछ अजीज नहीं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी अधूरी रह जाए। और लोग मेरे बारे में ये कहें कि इसहाक ने कहीं पर कोई कोताही की है। मेरे पास सबसे कीमती शय मेरी जान थी, जिसे मैं मैदान में ले आया हूं। देखो इन्होंने हमारे साथ क्या किया। आले मोहम्मद पर कितना जुल्म ढाया है। मैंने कहानियों में भी कभी इस तरह के रहसनों के बारे में नहीं सुना था।
उनमें हर कोई तजुर्बाकार और तरबियत याफ्ता जंगजू की तरह था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रहसन हो ही ना। मुझे हर किसी पर शक हो रहा था, यहाँ तक कि उस बूढ़ी औरत पर भी जो इस दर्दनाक हमले से पहले हमारे लिए हलवा लेकर आई थी। मुझे ये भी डर था कि दुश्मन हमारी इन शहादतों के बाद भी अगर खामोश ना बैठा और उसने दोबारा किसी भी वक्त हम पर हमला कर दिया। नहीं मालूम कि हम मर्व पहुंच भी पाएंगे या नहीं। लगता है बाकी का सारा सफ़र इज़्तिराब और बेयकीनी की कैफियत में गुजर जाएगा। बीबी पूछ रही है कि कुम तक कितना फासला है। मेरे ख्याल में तकरीबन 10 फरसख। मैंने शहर कुम का नाम पहले से सुन रखा था। मेरी वालिदा ने इमाम जाफ़र इब्ने मोहम्मद से रिवायत किया था कि कुम अहले बैत का हरम है। बीबी कह रहे हैं कि कुम तक 10 फरसख का फासला है। जैसे ही मैंने बीबी को कुम का फासला बताया, उन्होंने फौरन काफिले से अलग होकर कुम की तरफ जाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर बाद एक छोटे से काफिले के बायस मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मेरा सलाम हो अहले बैत इस्मत व तहारत पर। बहुत शर्मिंदा है बीबी। अल्लाह गवाह है कि हमने कहीं भी सुस्ती से काम नहीं लिया। हम लोगों को जैसे ही आपके काफिले की खबर मिली, हम उसी वक्त रवाना हो गए। हमें अपने गम में शरीक समझे। मर्व तक पहुंचने में बहुत दिन लग जाएंगे। आपसे दरखास्त करते हैं कि आप कुछ दिन कुम में हमारी मेजबानी कबूल फरमाएं। फिर से इत्मीनान और इज़्तिराब यकजा हो गए। इत्मीनान इसलिए कि कुम का नाम सुनते ही बीबी के रंजीदा और गमज़दा चेहरे पर इत्मीनान नजर आया, और इज़्तिराब इसलिए कि मालूम नहीं कुम पहुंचने तक हमारे साथ क्या होगा। कुम वालों, बीबी का काफिला पहुंच गया है। दुख्तर मूसा इब्ने जाफर का काफिला पहुंच गया है। खुशामदीद, खुशामदीद मूसा इब्ने जाफर की दुख्तर। खुशामदीद, आपने कुम वालों को यह शर्फ बख्शा। आप पर हमारा सलाम। हम सब आपका खैर मकदम करते हैं। मर्व में हमारे मौला रिजा की खिदमत में पहुंचने तक काफी रास्ता बाकी है। आप सेहत याब होने तक यहीं कुम में कयाम फरमाइए और इस शहर वालों को अपनी खिदमत का मौका दीजिए। मेरा सलाम कबूल कीजिए। हम सब आपके गम में बराबर के शरीक हैं। कुम के तमाम मर्द और ख़वातीन आपसे ताज़ियत करना चाहते हैं और आपकी सलामती के लिए दुआ गो हैं। इन दिनों कुम में ठहरने का इंतखाब बिल्कुल सही था। अपनी माँ की नसीहत और जनाब इसहाक शहीद की वसीयत के मुताबिक मैं खुद को बीबी के मुहाफ़िज़ के मुकाम पर देख रही थी। एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकती थी। बीबी हर हाल में, चाहे खलवत में हो या ख़वातीन से मुलाकात में मसरूफ़ हो, ज़िक्र इलाही को कभी फरामोश नहीं करती थी। और मेरी इबादत इन दिनों बीबी की आयादत करने में थी, दवा बनाना और बीबी की सेहतयाबी के लिए अपनी पूरी कोशिश करना। अस्मा, बीबी, देखो क्या हुआ है। बीबी क्या हुआ है आपको? तबीबा, तबीबा को फौरन बुलाइए। थोड़ा पानी दो मुझे। तबीबा! या अल्लाह, क्या हो गया इन्हें? जल्दी से देखिए ना आगे। पुरसुकून हो जाएं। मेहरबानी करके आप सब बाहर चली जाएं। चले। या अल्लाह, अपना करम करना। ये लो बेटी, जो तुमने कहा था वो सब ले आई हूँ।
इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? काम कर रही हूँ, घबराई हुई नहीं हूँ मैं। काम कर रही हो इस तरह से? क्या हो गया? और कैसे होता है काम? मैं यहाँ अपने घर से मीलों दूर, शौहर शहीद हो गया परदेस में, और कैसे काम करूँ कि आप राजी हो जाए, बताएं मुझे। अल्लाह तुमसे राजी हो मेरी बेटी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि तबाबत सब्र और तहम्मुल का काम है। इस परेशानी और अफसरदगी में तुम दवा तो बना सकती हो बेटी, लेकिन शिफा नहीं दे सकती। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो मौजिज़ा करना चाहते थे, मदीना की बेहतरीन तबीबा के शिफा बख्श हाथ बनना चाहते थे, चाहते थे जख्मों और तकलीफों को कम करो। फिर तुम इतने नातवा क्यों हो गए? आखिर इस बीमारी का इलाज मुश्किल क्यों है? बेवकूफ हाथों, काश तुम ना होते। तुम्हारे होते हुए मैं कुछ ना कर पाऊँ, ये ज्यादा हसीयतनाक है मेरे लिए। अगर आपके हाथ थक गए हैं तो मैं मदद कर दूं आपकी? बीमारी भी रहसनों से कम नहीं है, खामोशी से आगे बढ़ती है, फिर मुहासरा कर लेती है। जब ऐसा लगता है कि इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा तो सामने खड़ी नजर आती है। हम तबीबों से दवा और अल्लाह से शिफा तलब करते रहे, लेकिन बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही थी। और उस दिन से अल्लाह की पनाह, जब तबीब दवा और इलाज के बजाय नहीं जानते, शायद या दुआ करें जैसे अल्फाज की तकरार करें। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, जितना इल्म तिब मैंने सीखा है वो सब इस्तेमाल कर लिया है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं जानता कि उनकी बीमारी की असल वजह मुझ पर जाहिर क्यों नहीं हो रही। बीमारी का कोई तोड़ नहीं हो रहा मूसा। तो इसके इलाज के लिए मजीद कोशिश करेंगे हम। हर इलाज आजमा चुके हैं,
बीबी के सिरहाने कुरान पढ़ने वाली का इंतजाम कीजिए। तबीब ने जवाब दे दिया है, अब किसी के बस की बात नहीं है। मशहद का वो 8वां मोती है तस्बीह मोहम्मद का, वो 8वां मोती है तस्बीह मोहम्मद का। आला है तेरा शजरा या फातिमा। काश कि मैं पहले ही बीबी से पूछ लेती कि मैं यहीं ठहर जाऊं और आपके फिराक में अश्क बहाऊं या मदीने की तरफ लौट जाऊं और जहां कहीं भी मुमकिन हो आपके इस सफ़र की हकीकत को बयान करती रहूं। आपके पास ही ठहर जाऊं और अपनी माँ से जुदाई को बर्दाश्त करूं, या फिर अपनी माँ के पास चली जाऊं और आपसे दूरी का गम सहूं। यहीं कुम में आपके कब्र मुबारक की मुजावर बन जाऊं और आपके ज़ायरीन की खिदमत करूं, या आपकी सफ़ीर बनकर मदीना चली जाऊं। ऐ काश मैं पहले ही बीबी से पूछ लेती। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि इमाम अली इब्ने मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी साद अशरी को ज़ियारतनामाए हज़रत बीबी फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा देकर कुमुल मुक़द्दिसा भेजा, और उस ज़माने से लेकर क़यामत तक आने वाले ज़ायरीन के लिए उस ज़ियारतनामे को वसीलाए मारफत हज़रत फातिमा मासूमा करार दिया। तस्वीर ज़ैनब, ऐ
हम नाम ज़हरा ए तस्वीर ज़ैनब कुराने तक़द्दुस ए तफसीर ज़ैनब ए जानो दिले ज़हरा या फातिमा मासूमा हम शीरे रज़ा मौला या फातिमा मासूमा ए जानो दिले ज़हरा या फातिमा मासूमा हम शीरे रज़ा मौला या फातिमा मासूमा तू गुंचा इस्मत है अज़मत के गुलाबों में तू आयत काज़िम है कुरान के हिजाबों में तू आयत काज़िम है कुरान के हिजाबों में तत्हीर तेरा पर्दा या फातिमा मासूमा ए जानो दिले ज़हरा या फातिमा मासूमा हम शीरे रज़ा मौला या फातिमा मासूमा ए जानो दिले ज़हरा या फातिमा मासूमा हम शीरे रज़ा मौला या फातिमा मासूमा तू दुख्तरे ज़हरा है ज़ैनब की है तू सानी तू शम्मे हिदायत है तू मशअले ईमानी तू शम्मे हिदायत है तू मशअले ईमानी तू इल्म का है दरिया या फातिमा मासूमा